تمام ویورز کو السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو لے کر جائیں گے کینیڈا کی سیر پر، اور ہم آپ کو سیر کے علاوہ وہاں کے ویزے کے بارے میں بھی معلومات دیں گے۔ کینیڈا آرکین زبان کا ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے گاؤں۔ کینیڈا کا دارالحکومت اوٹاوا ہے اور ملک کا سب سے بڑا شہر اوسلو ہے۔ بحر اوقیانوس سے لے کر بحر مجمد شمالی تک پھیلا ہوا یہ براعظم شمالی امریکہ کا ایک ملک ہے۔ کینیڈا کی زمینی سرحدیں امریکہ کے ساتھ جنوب اور شمال مغرب کی طرف سے ملتی ہیں۔ کینیڈا کا نظام حکومت وفاقی آئینی بادشاہت اور پارلیمانی جمہوریت کا نظام قائم ہے۔ ملکہ الزبتھ دوئم کینیڈا کے سربراہ مملکت کا کام سر انجام دیتی ہیں، اور ملک کے موجودہ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو ہیں۔ کینیڈا کا وزیر اعظم پہلے نائٹ کلب میں باؤنسر اور سنو بورڈنگ انسٹرکٹر کے طور پر بھی کام کرتا رہا ہے۔ ان معاشروں میں کامیابی کے لیے آپ کو محنتی اور ملک کے ساتھ مخلص ہونا ضروری ہے۔ کینیڈا کے 10 صوبے اور 3 ریاستیں ہیں۔ کینیڈا کا رقبہ 99,84,670 مربع کلومیٹر ہے، جو رقبے کے لحاظ سے روس کے بعد دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے۔ کینیڈا کی کل آبادی 3,70,67,100 ہے۔ کینیڈا کی آبادی کی اوسط 3.5 افراد فی مربع کلومیٹر ہے، جو دنیا بھر میں سب سے کم گنجان آباد علاقوں میں شمار ہوتا ہے۔ کینیڈا کی 3/4 آبادی امریکہ کے ساتھ سرحد کے 160 کلومیٹر کے اندر رہائش پذیر ہے۔ کینیڈا میں انگریزی اور فرانسیسی زبانوں کو سرکاری زبانوں کا درجہ حاصل ہے۔ غیر سرکاری زبانیں بھی اہمیت رکھتی ہیں، اور ان کے بولنے والے 5 ملین سے زائد ہیں۔ ان میں چینی، اطالوی، جرمن، پنجابی، اردو، ہندی شامل ہیں۔ کینیڈا ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ترقی یافتہ اور صنعتی قوم ہے۔ اس کی معیشت کا زیادہ تر انحصار اس کے قدرتی وسائل اور تجارت، بالخصوص امریکہ کے ساتھ تجارت پر ہے۔ امریکہ کے ساتھ کینیڈا کی طویل مدتی شراکت ہے۔ کینیڈا کا GDP $1.8 ٹریلین ہے۔ یہ دنیا کی 10ویں مضبوط ترین معیشت ہے، اور کینیڈا کی فی کس آمدنی $48,466 سالانہ ہے، جو دنیا میں 15ویں نمبر پر شمار ہوتی ہے۔ کینیڈا کے سب سے چھوٹے قصبے ٹلٹ کوو میں فقط 4 افراد رہتے ہیں۔ اگر کینیڈا کی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو آثار قدیمہ کی تحقیقات کے مطابق شمالی علاقے یوکون میں انسانی موجودگی 26,000 سال پہلے تھی، اور جنوبی علاقے اونٹاریو میں 95,000 سال پہلے انسانی آبادی کے آثار ملے ہیں۔ جب بحری قذاب یہاں کرکاکے کے مقام پر 1000 عیسوی میں باقاعدہ آباد ہوئے۔ اس کے بعد مہم جو جان کابوت 1497 میں اور مارٹن فروبشر 1576 میں برطانیہ کی طرف سے آئے۔ پہلی باقاعدہ یورپی آباد کاری کا آغاز فرانسیسیوں نے پورٹ رائل میں 1605 میں اور کیوبک سٹی میں 1608 میں کیا۔ برطانوی آباد کاری کا آغاز نیو فاؤنڈ لینڈ میں 1610 میں ہوا۔ 17ویں صدی کا بیشتر حصہ برطانوی اور فرانسیسی کالونیوں نے ایک دوسرے سے الگ تھلگ رہ کر گزارا۔ تاہم جوں مچھلیوں کی کمی ہوتی گئی، فرانسیسیوں، برطانویوں اور ساحلی قبائل کے درمیان جنگیں چھڑتی گئیں۔ کینیڈا کی فرانسیسی کالونی نیو فرانس دریائے سینٹ لارنس کے ساتھ بسائی گئی۔ بعد ازاں اس کو تقسیم کر کے 2 برطانوی کالونیاں بنا دیا گیا، جن کے نام اپر کینیڈا اور لوئر کینیڈا تھے۔ 1867 الحاق کے بعد کینیڈا کو ایک نئی ڈومینین کا درجہ دے دیا گیا۔ 1950 تک اس کا نام ڈومینین آف کینیڈا رہا۔ کینیڈا نے برطانیہ سے بتدریج آزادی حاصل کی۔ یہ عمل 1982 میں مکمل ہوا۔ 17 اپریل 1982 کو کینیڈا نے ملکہ الزبتھ دوئم کی منظوری سے اپنے آئین کو برطانوی آئین سے علیحدہ کر لیا اور اپنے آپ کو ایک آزاد مملکت کا درجہ دے دیا، اگرچہ دونوں ممالک ابھی بھی مشترکہ علامتی بادشاہت کے ماتحت ہیں۔ اسی طرح 1982 میں اس کا نام بدل کر کینیڈا رکھ دیا گیا، اور آج بھی کینیڈا میں فرانسیسی اور انگلش بولنے والوں میں تفریق ہے۔ 1995 میں دوسرے ریفرنڈم میں لوگوں نے
50.6% की निस्बत 49.4% के मामूली से फ़र्क से कनाडा से आज़ादी को मुस्तरद किया। कनाडा दुनिया का सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता मुल्क है। कनाडा में ड्राइव राइट साइड है। कनाडा में 60 साल विंसन ब्लैकमोर को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई, जिसने 25 शादियां की और इसके बच्चों की तादाद 125 है। क्योंकि कनाडा में एक से ज़ायद शादियों पर पाबंदी है, लेकिन याद रहे बदकारी पर कोई पाबंदी नहीं। कनाडा की करेंसी कैनेडियन डॉलर है, जो पाकिस्तानी 94.26 रुपयों और इंडियन 54.32 रुपयों के बराबर है। कनाडा का कॉलिंग कोड +1 है और डोमेन नेम .ca है। टाइम के लिहाज से कनाडा पाकिस्तान से 9 घंटे और इंडिया से 9.5 घंटे पीछे है। निस्फ से ज़्यादा कैनेडियन के पास कॉलेज डिग्री है। कनाडा में दर्जा हरारत -63 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। पूरी दुनिया के मुकाबले में सबसे ज़्यादा झीलें कनाडा में हैं। इसी तरह कनाडा के पास मीठे पानी के ज़खायर दुनिया भर में सबसे ज़्यादा है। कनाडा दुनिया में किसी भी दूसरे मुल्क से ज़्यादा मैकरोनी और पनीर का इस्तेमाल करता है। कनाडा के शहरी एक साल में अरबों डॉलर की भंग पी जाते हैं। कनाडा की आबादी का 77.1% मसीही है, जिसमें से कुल आबादी का 63.6% हिस्सा कैथोलिक और बाकी प्रोटेस्टेंट हैं। 17% किसी मज़हब से तल्लुक़ ज़ाहिर नहीं करते, बाकी 6.3% में से अक्सरियत मुस्लिम है। मौजूदा दहाइयों में कनाडा के लोग अपनी सकाफ़ती खुद मुख्तारी के लिए बहुत परेशान हैं, क्योंकि टीवी शोज़, फिल्में और कंपनियां बहुत ज़्यादा आम हो गई हैं। ताहम कनाडा को अपने आलमगीरी निज़ाम सेहत और कसीरुल सकाफ़ती मुल्क होने पर फ़ख्र है। कनाडा के शुमाल मगरबी इलाकों में गाड़ियों के लाइसेंस की प्लेटें पोलर बियर की शक्ल की बनाई जाती हैं। कनाडा का साहिल दुनिया में सबसे बड़ा है। कनाडा के साहिल सर्दी से जम जाते हैं। लोग इस पर हॉकी खेलते हैं। कनाडा का सरकारी खेल आइस हॉकी है। दूसरी मशहूर तरीन खेल कैनेडियन फुटबॉल, गोल्फ, बेसबॉल, सोकर, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल भी बड़े पैमाने पर खेली जाती है। कनाडा के इलाके चर्चल के अक्सर रिहायशी सिर्फ इसलिए अपनी गाड़ियां खुली छोड़ जाते हैं ताकि यहां से गुजरने वालों पर अगर बर्फानी रीछ हमला आवर हो तो वो गाड़ी में पनाह ले सके। हर साल 10 लाख के करीब सांता क्लॉज के नाम खत कुतुब शुमाली के टाउन हो के पते पर आते हैं। द मॉल ऑफ अमेरिकन कैनेडियन की मलकियत है। कनाडा का सरकारी फ़ोन नंबर 1-800 ओ कनाडा है। कनाडा पुलिस लोगों को मुस्बत कुछ करता देखती है तो उन्हें खुसूसी टिकट इनाम दिए जाते हैं। अमेरिका ने 1775 और 1812 में कनाडा पर कब्जा करने की कोशिश की। दोनों मरतबा उसे शिकस्त हुई। सऊदी अरब और वेनेजुएला के बाद सबसे बड़े तेल के ज़खायर कनाडा के पास हैं। कनाडा में कुल 34 कौमियतें ऐसी हैं जिनकी आबादी 1 लाख से ज़ायद है। कनाडा के अपने बशिंदे सबसे ज़्यादा यानी 39.4% हैं। इसके बाद अंग्रेज़ों की तादाद 20.2% है। इसके बाद फ्रांसीसी, स्कॉटिश, आयरिश, जर्मन, इतालवी, चीनी, यूक्रेनियन और जनूबी अमेरिका के रेड इंडियन आते हैं। कनाडा की सकाफत तारीखी एतबार से अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी, अमरीकी और मकामी सकाफतों से बहुत ज़्यादा मुतासिर है। मीपल का पत्ता कनाडा की सरकारी अलामत का दर्जा रखता है और इसी का निशान कनाडा के फ्लैग पर भी है। अमेरिका और रूस के बाद कनाडा के खलाई प्रोग्राम को दुनिया का तीसरा बेहतरीन प्रोग्राम माना जाता है। कनाडा में डोनट शॉप दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। नॉर्थ अमेरिकन बीवर कनाडा का कौमी जानवर है। कनाडा और डेनमार्क 1930 से एक गैर आबाद जजीरे की मलकियत के लिए लड़ रही हैं। कनाडा में 2.5 लाख झीलें और उनमें दुनिया के साफ पानी का 5वां बड़ा हिस्सा मौजूद है। 2015 में एक शख्स को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया वो 100 गुब्बारों के साथ कुर्सी को बांधकर कैलगरी शहर के ऊपर उड़ रहा था। अंदाज़न 93,000 कैनेडियन शहरी एक्सपायरी वीज़े के साथ अमेरिका में मुकीम है, जो दुनिया में किसी भी दूसरे मुल्क के शहरियों की सबसे बड़ी तादाद है। कनाडा का सूबा अल्बर्टा 50 साल से रेट फ्री है।
यानी वहाँ पर चूहे नहीं हैं। हवाइन पिज़्ज़ा कनाडा में इजाद किया गया था और आज ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा मकबूल पिज़्ज़ा है। कनाडा में ऐसी चीज़ें ले जाने पर मुकम्मल पाबंदी है जिससे किसी पर हमला किया जा सकता है, जैसे मिर्ची स्प्रे वगैरह। एक इंटरनेशनल स्टडी के मुताबिक बरतानिया, इटली और कनाडा के बच्चे सबसे ज़्यादा रोते हैं। रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका के मुकाबले में कनाडा सिर्फ 1.5% बड़ा है। कनाडा के कौमी पार्क बच्चों के लिए मुफ्त हैं। कनाडा के अमेरिका से बहुत गहरे तल्लुकात हैं। कनाडा और अमेरिका के बीच दुनिया की सबसे बड़ी मुश्तरका सरहद है जिसकी निगरानी नहीं की जाती। नेटो के बानी रुकन की हैसियत से कनाडा आजकल तकरीबन 62,000 बाकायदा और 26,000 रिजर्व फौजी भर्ती कर चुका है। कनाडा की अफवाज के पास कुल 1400 जंगी गाड़ियां हैं और 34 बहरी जंगी जहाज हैं और कुल 861 लड़ाका हवाई जहाज भी हैं। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको ये कैसी लगी मुझे अपनी राय से आगाह करें और अपने प्यारों के साथ इसे शेयर किया करें और वीडियो को लाइक करें।